Yes, come in. Have a seat. Thank you. Introduce yourself. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to thank you for giving me this chance to introduce myself. My name is Sadra Fatima. I'm from Aligarh itself. I have studied till 8th standard in Aligarh International School, also known as Aligarh Islamic School. I'm from Aligarh itself. I live in a nuclear family where both of my parents work in AMU. My father, Mr. Muhammad Shahid, works in anatomy department, whereas my mother, Dr. Yashoda, teaches at AMU Senior Secondary School. When it comes to my strength, I'm a hardworking, self-motivated individual having good communication skills. When I talk about my achievements, I've achieved a lot of things till now. I've been a national science gold medalist. I've also won first position in inter-school cyberation, and I've even won few prizes from one of the panelists of ninth entrance interview. When I talk about my hobbies, I love playing chess. I also like spending time with my pets, and currently I'm also interested in swimming. I really want to join AU because of its academic reputation and ethical values, and I know that it will help me grow further. Thank you. Your favorite subject is? Science. How do you define science? Science is a subject which doesn't stop. Basically, technologies and latest development also getting added in it, and it's fascinating because of its multicultural things. Okay. How can you find out the perimeter of this item? Uh, it is a semicircle. Find out. It would be 2 pi r divided by 2. Are you sure? What about this diameter? Um, Your favorite chapter in mathematics? in mathematics, it would be, I think, rational numbers. Rational numbers. So how would you define rational numbers? Rational numbers are the numbers which are written in the form of p by q. Not in the form of x by y. It can be written in the form of x by y. It's just a notation. Okay. So it can be written in the form of p by q, where q is never 0, and it could be integer. What about p and q? Sorry, what? What about p and q? Yeah. P and q could be any number, but q could not be 0. It can be any number. It can be a real number also. Yes. It can be a real number. I'm not sure, to be honest. You are saying that rational number is your favorite chapter and you must know about it. Okay. So between two rational numbers, how many rational numbers can you find? Basically, there are infinite rational numbers between q. Okay. What about 0.01 and 0.02? Can you find infinite rational numbers between them? My first question is, these are rational numbers or not? 0.01 and 0.02. They are rational numbers. They are not written in the form of p by q. But well, when we remove the point, it would be written Point or decimal? decimal. Okay. Remove the decimals. So when we remove it, it would be 2 0. Okay. What about this? What you want to? That Okay, find out infinite number of rations between these numbers. Can you find out? Okay. In science, which subject do you like most? biology, Raji. Which chapter? cell structure, Cell structure. Thermos bottle shape सेल ऑर्गेनिल का नाम बताए. thermos bottle shape. किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है बताओ? Um, Sir, I'm not able to recall it as of now. ओके. उस सेल ऑर्गेनिल का नाम बताइए जो प्लांट सेल के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है. Vacuoles. वैक्यूल के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? Uh, Sir, I'm not able to recall. ओके. माइग्रेशन मालूम है किसे कहा जाता है? क्या है? व्हाट इज माइग्रेशन? Migration is the process when basically it's a way how a animal moves from one place to another. A long distance they cover in search of suitable climate or reproduction. फिर
चैंपियन ऑफ माइग्रेशन किस बर्ड्स को पाया था? Arctic term. आर्किटम। ओके। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम सुना है आपने? उसके 2 फौना का नाम बताइए। फौना समझते हैं किसे कहते हैं? Yes, sir. Yeah. Fauna, the animals present. जानते हैं। उसमें 2 बेसिक एनिमल्स के नाम बताइए। Sir, the lion are present there. नो। Sir, I'm not sure about that. अच्छा, फ्लोरा बताइए। Sir, I'm not able to recall. ओके। अच्छा, आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना? Yes. उसने क्या डिस्कवर किया था? So he discovered the first antibiotic क्या नाम था? penicillin. किससे डिस्कवर किया था? कौन से फंगस से? So the fungus name. नेम ऑफ फंगस? Um, 2 कॉमन प्रिजर्वेटिव का नाम बताइए बेटा। so salt, oil. 2 most common preservative is this is the text of the NCERT. The most common preservative का नाम बताइए। केमिकल प्रिजर्वेटिव पूछ रहा हूँ। Sodium benzoate, sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट? नो। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ओके। अच्छा, ये बताइए बेटा, आपने वीड का नाम सुना? वीड? व्हाट इज वीड? Weeds are the harmful plants that grow along the crops. Okay. Unwanted plant grow along the crops. That is called weed. The chemical used for the removal of weed is called So weed is examples. 2,4-D. Full form? Uh, 2,4 dichlorophenoxyacetic acid. Do you know what is the full form at MCPA? MCPA. Sir, I'm not sure. You are not sure. अच्छा, आपके फादर जो है कौन से डिपार्टमेंट से? Anatomy department. एनाटॉमी क्या? It is the study of human body. It's a study of human body. Human body. Study of human body. How the functions happen in a human. Study of internal structure and their functioning organ is called anatomy. आपने ब्रेव सिस्टम के बारे में पढ़ा है? Yes. किसके लिए यूज किया था? So it is used for the visually aid people who read. ये ब्रेव सिस्टम किसने इन्वेंट किया था? Louis Braille. लुइस ब्रेल। किस ईयर में? Sir, I'm not sure about. अच्छा, एक बार बताइए, यूनिवर्सिटी का कोई स्कूल है जो कि इस सिस्टम को फॉलो करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए? Yes, sir. क्या नाम है? Ahmadi School for Visually Aid people. ओके। अच्छा, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, ठीक है? आप कुछ फिजिक्स में भी जानते हो या केमिस्ट्री में? आपने कंबशन इन फ्लेम सुना है चैप्टर, या पढ़ा है? सुना है, पढ़ा है? Sir, पढ़ा है। ओके, मुझे बताइए, फ्लेम कितने टाइप, फ्लेम कितनी लेयर्स होती हैं? sir, 3. ये कौन कौन सी? Sir, inner layer and middle layer and the outer. कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? Sir, coldest is the outer layer. आउटर लेयर। अच्छा, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमारी आंखों में कितनी देर तक रहेगी? So इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। 1/16. Sir. और व्हाट अबाउट साउंड? 1/20 second. 1/20 सेकंड। आर यू श्योर? Yes. Sir. प्रॉपर इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड होता है? Minimum. Sir, 25 centimeters. 20. ओके। अच्छा, सुनार का नाम सुना है आपने? सुनार कौन सा वाला सुनार? जब मम्मी जाती है वो वाला सुनार, या कौन सा वाला सुनार? फिजिक्स वाला? Sound navigation. साउंड Navigation and ranging. किस काम आता है? Sir, it is used to know the depth of sea or if there is any object in the sea. व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? So maybe big stones or any other aquatic animal we can say. A small goldfish can be detected on that device. Sir, it is very small then I don't think. You don't think? Okay, you just know the things which is mentioned in your book. That much knowledge you have. Okay. Can you tell me the instrument which through which we can check the purity of milk? Sir, I'm aware about it, but I'm not able. What is the momentum? जैसे एक बहुत कॉमन मोमेंटम इज अ टर्म जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। मोमेंटम बना रहना चाहिए। आप यहाँ से भी आइडिया दे सकते हो। मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? So maybe the changes that occurs. That changes that occurs.
चेंजेस दैट अकर। अच्छा ये बताइए, 2 वेव्स हैं, बल्कि एक वेव है, और उस वेव के लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अरे छोड़ो, लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस से नीचे का बता दो। अच्छा ये भी छोड़ो, 2 वेव्स के भी बीच का बता दो। हर्ट्ज़ किसकी यूनिट है? Sir, hertz is the unit of frequency. फ्रीक्वेंसी। इंडिया में किस फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है? Light. लाइट इज़ अ वेव और अ पार्टिकल? Sir, it is a wave. इट इज़ अ वेव। व्हाट अबाउट पार्टिकल? Sir, I don't think it light is a particle. लाइट। अच्छा, हम जो एनर्जी एक्वायर करते हैं फूड से, वो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, या कोई और सी एनर्जी की बात चलती है? Sir, I'm not sure. आप फिटनेस पे ध्यान रखते हो? फिटनेस के बारे में सुना है? फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि जितना कैलोरी आप खा रहे हो, उतना कैलोरी अगर आप बर्न कर पाओगे, यानी कि आपकी बॉडी फिट रहेगी। या अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, तो कैलोरी इनटेक कम होना चाहिए और कैलोरी को निकालना ज़्यादा चाहिए। तो कैलोरी को, अब मुझे कैलोरी का कन्वर्जन ना आता हो, मुझे जूल्स का कन्वर्जन आता हो, तो आप मुझे बता सकते हो 1 कैलोरी में कितने जूल्स होंगे? Sir, around 1000. जी, क्यों? इधर आइए होता। बेटा जब तक आपसे इधर-उधर के क्वेश्चंस हो रहे हैं, अदर देन दी सब्जेक्ट, तो आप अच्छे से खेल रहे हो। आप अच्छे से जवाब दे रहे हो, आप उसको मैनेज कर ले रहे हो, आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, दैट्स इट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, जब हम आपके सिलेबस में एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ आप ऐसे फ्लोट कर रहे हो, ऐसे फ्लोट कर रहे हो कि आपका नामो-निशान नहीं दिख रहा हमें। जी, जी। अब उसको हमें सोनार की हेल्प से डिटेक्ट करना पड़ रहा है। ईदर वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। वो सेमी पैरामीटर का सिंपल सवाल में आपको, यू जस्ट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन फ्लैक्चुएशंस ऑफ सेकंड। यस। दैट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर ने तो पूछा ही नहीं कुछ अभी मैथ्स का, जो सर पूछ रहे हैं ऑल राउंड्स में। और फिर आपने बोला दैट माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में आपसे पूछा गया, तो बायोलॉजी के बारे में आप 50-50 हो, नॉट 50-50, 80% भी आप नहीं आंसर कर रहे हो, ठीक है? और फिजिक्स की तो मैंने ऐसे बात ही नहीं करी अभी। फिजिक्स बहुत सिंपल वे में आपसे पूछा कि द लुकमा टाइप क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, ओके? तो उसका भी आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है? तो मार्क्स आपके ठीक, आपको सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आप तो ऐसा सब्जेक्ट के अलावा अगर सर गई, तो ये मैनेज कर लेगा। हाँ, यस। आपको बेटा सबसे पहले आपको अपने इंट्रोडक्शन आपका बहुत बढ़िया है, ठीक ना इंट्रोडक्शन बोलो। ठीक है? इसमें नो डाउट, और इंट्रोडक्शंस को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, इसमें इंट्रोडक्शन तो थोड़ा शॉर्ट रखना है, ताकि उसको टाइम मिले आपसे पूछ सके वो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज को इम्प्रूव कर, जैसे आपने साइंस बोला, साइंस में अगर उसने बायो बोला, तो बायो से अगर उसने चैप्टर बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एटलीस्ट जो चीज़ें बुक्स में अवेलेबल, मैंने वो तो उत्तम कमांड। सामान्य वाली मालूम होगा। अब आपके फादर एनाटॉमी डिपार्टमेंट के, तो जैसे मुझे, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने 9, 10, 11, 12 तक ही होगी बायोलॉजी मेरे पास। तो मैंने एनाटॉमी पूछा, व्हाट इज़ एनाटॉमी? तो आपको उसके बारे में ऐसा आंसर देना है कि सर को बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो इसमें ये भी होता है। जी, जी। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट राउंड के लिए आप कल आ जाओ। अभी जो है ना, मैं आपको जो है नॉलेज में मार्क्स अच्छे नहीं दे सकता। इंट्रोडक्शन टू कॉन्फिडेंस में मार कॉन्फिडेंस वाज़ गुड, बट नॉलेज में अभी इम्प्रूवमेंट नहीं करा है। नॉलेज थोड़ा-सा इम्प्रूव करेगा, सो जा बेवजह नंबर तो नहीं बाँटेंगे, आपकी खुशी के लिए। हमारी खुशी और आपकी खुशी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बेमनियू में जाएँ और सिलेक्ट हो जाएँ। ऐसे, और मेरे लिए मिठाई लेके हैं, ज मिठाई गई उधर की, ठीक है? ठीक है, तो कल आइए, और समझ लगा तो ये चीज़ें बोल, मैं अभी एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि हम कल सब्जेक्ट पे कन्फाइन रहेंगे, तो थोड़ा उसके हिसाब से रहिए। हाँ, उसके हिसाब से आइए। इंट्रोडक्शंस यूँ ही निकाल लेंगे, सब्जेक्ट्स पे हम आपको फ़ोकस करेंगे। जब सब्जेक्ट पे फ़ोकस करेंगे, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल कमर कस के आनी है, ठीक है? समझ में आया? ओके, Thank you. वेलकम तो